Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and we are back with online lectures of communication skills. So, we are discussing about writing skills. Till this video, we have discussed how to write, different types of writing styles, the different contents that you can write, various career opportunities in writing, and etc. So, today we'll cover one of the important aspect of the writing. So that is email writing. And in this email writing, we will discuss how to write an email, what are the different parts of an email, and what kind of email you should write. So email writing, or simply an email, is a formal way of communication through written media. So while you are writing some emails, that means you are communicating with the person that is receiving that email in a formal way, in an official way. Okay, so that's why we do not use emails for chatting. We do not use it for our regular chit chat or regular talking. Okay, or our regular talks. We do not use the emails. We use applications like WhatsApp, Facebook, and other applications like Telegram or any other messengers. Okay, so email is generally used to communicate the official messages, the formal messages uh, to some person or to some organization. Okay, so let us discuss email writing. So what's an email? So you might have heard about mail. You might have sent some mails. I'm talking about mails. So mails are what? Mails are written letters or some written messages which are sent to your relatives, to your friends, or someone uh, you want to send that mail. Okay. So it is generally sent through the post office. So like for quick, you can say quick delivery, you used to send telegrams, okay, which would be sent in a day or in a 2 days. That would be received in a 2 days. Then if you don't want to send some urgent messages, then you used to use the simple mails, simple post letters, okay, and through that uh, you have experienced sending it through the post office. Okay, now what's an email? Email is similar kind of thing, but we do not use post office here. We use electronic media. That's why the name is email. So E stands for electronic mail. Now we use electronic media like internet. Okay, so the mail is sent from one person through some email ID, and it is sent to someone else which is the receiver. So he receives it and reads it. So all the things are connected through electronic media like internet. So you use some uh, say computer, mobile, or some other devices from which you want to send the email, and then you send it to some receiver who again uses some similar kind of media to decode it or to understand what is written in that email. Okay, so email stands for electronic mail. You send and he receives messages over the internet. You can see here people sending and receiving messages. So how a structure of email is? Okay, so स्ट्रक्चर कैसा रहता है हमारे ईमेल का? सो जो रेसिपिएंट है या जिसको मेल भेजना है, जिस जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस वहाँ लिखा रहता है। जैसे हम पोस्ट ऑफिस से हमारा लेटर भेजते थे या मेल भेजते थे, इसके अंदर सेंडर का एड्रेस रहता था और साथ ही साथ में रिसीवर का एड्रेस रहता था विथ पिन कोड, बराबर है। सो तभी वो मेल जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। सो सेम यहाँ पर भी है, रेसिपिएंट जो है जिसको भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अब इस एड्रेस में जो है हम सिंस मेल नहीं भेज रहे हैं, हम ईमेल भेज रहे हैं। ओके, सो ईमेल भेज रहे हैं इसलिए जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस भी ई रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल का एड्रेस रहेगा। जैसे कि से XYZ
pqr.com या से abc@gmail.com या mnop@yahoomail.com या hotmail.com, ऐसा एट एट उसका क्या रहता है, एड्रेस। ओके, सो ये उसका रेसिपिएंट का एड्रेस रहेगा। फिर रहता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी किस विषय पे आप मेल लिख रहे हो, आप आपके जॉब का एप्लीकेशन भेज रहे हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन मंगाने के लिए कोई मेल भेज रहे हो, कोई चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए कोई थैंकिंग लेटर भेज रहे हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है तो वो इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो। सो वॉट एवर द थिंग यू आर सेंडिंग, इट शुड हैव सम सब्जेक्ट। उसका क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट यानी विषय रहना चाहिए। जैसे हम हमारे मेल में लिखते हैं, ओके, कि इस विषय से हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ये जो पत्र है वो लिख रहे हैं, या लेटर जो है वो हम लिख रहे हैं। ओके, फिर रहता है अटैचमेंट। अटैचमेंट ज़रूरी नहीं कि हर ईमेल में अटैचमेंट रहेगी, कुछ ईमेल्स में आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। अटैचमेंट क्या रहता है, तो जैसे आप ईमेल्स रहते हैं, आप जो सिंपल मेल भेजते थे पहले, इन मेल्स में हम फोटोग्राफ्स या कोई सेपरेट एक आधी छोटी सी गिफ्ट या एखादा छोटा सा रुमाल या कुछ ऐसा छोटा बहुत थोड़ा सा कुछ जो पोस्ट से भेजा जा सकता है, ऐसा हम क्या करते थे, हमारे ईमेल के साथ अटैच करते थे। ठीक है, सो उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। सो वैसा ही इसी में अटैचमेंट रहता है, जैसे कि कोई एक्सेल शीट होगी, कोई वर्ड फाइल होगी, कोई फोटोग्राफ होगा, या कोई और चीज़ जो अटैच हो सकती है ईमेल को। फिर रहेगा सल्यूटेशंस। इसके बारे में भी बात करेंगे। सल्यूटेशंस, हाय, हेलो, डॉक्टर, मिस्टर, प्रोफेसर, ओके, इस तरीके के सल्यूटेशंस रहते हैं। फिर रहता है बॉडी ऑफ द मेल, यानी जो मेन कंटेंट है वो। फिर क्लोजिंग सल्यूटेशंस या क्लोजिंग रिमार्क रहते हैं। और फिर रहता है हमारा सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर। ये रहता है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। सो एक ईमेल कैसा नज़र आता है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मैं मेरा ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये पहला वाला है पेज, ये मतलब प्रीवियस है मेरा, अभी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुका है। सो इसमें आप देख सकते हैं टू यानी किसको भेजना है, अ, उनका एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा टू में। फिर फ्रॉम यानी किससे आ रहा है, सो tpo@icmabed.com इनसे आ रहा है। फिर सब्जेक्ट यानी विषय क्या रहेगा। फिर यहाँ पर मेरा सल्यूटेशन यानी डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड, ओके, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएगी। बॉडी आएगा यहाँ पर, ये क्लोजिंग है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। फिर हमारा सिग्नेचर है, ये नीचे आप सिग्नेचर देख सकते हो, इसको डिजिटली सिग्नेचर भी किया जाता है। ओके, और यहाँ कुछ और एडिशनल चीज़ें आप देख सकोगे, जैसे सीसी है और बीसीसी है। इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो हम आगे समझेंगे। साथ ही साथ में आप यहाँ इस ईमेल में देख सकते हो कि यहाँ पर एक पिन लगाई है, जो पिन हम टैग पिन जिसको बोलते हैं। तो ये टैग पिन हम अटैच करने के लिए लगाते हैं कोई चीज़ों को, कोई पेजेस को। उसी तरीके से यहाँ पर वो अटैच करने के लिए लगाया जाएगा। फिर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे ये लिंक हैं, स्माइलीज़ हैं, कोई फोटोग्राफ है, कोई ड्राइव में से लिंक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं टू द मेल। फिर ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, आप आपकी राइटिंग जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जो भी आपको करना है वो, बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंट करना, ओके, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है ईमेल का। फिर आते हैं हेडर्स। सो इस ईमेल में ये जो पार्ट है जो ऊपर आप देख रहे हो हेडिंग में, ये सब पार्ट क्या है, हमारा हेडर है। ठीक है, इनको हम हेडर बोलते हैं। इन हेडर्स में क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है फ्रॉम, यानी किससे मैसेज भेजा जा रहा है, हु इज़ द सेंडर, उनका एड्रेस रहता है, उनका नाम रह सकता है, एड्रेस के साथ नाम भी कई बार आ जाता है। ओके, फिर रहेगा टू, यानी किसको भेजा जा रहा है, टू एड्रेस और टू एड्रेसेस, यानी मल्टीपल रह सकते हैं। यहाँ पर ये जो टू आप देख रहे हो, इसमें सिंगल ईमेल भी रह सकता है या मल्टीपल नंबर ऑफ़ ईमेल्स भी हम भेज सकते हैं। यानी एक ही चीज़ अगर 10-15 लोगों को, 20-50 लोगों को भेजना है तो वो भी आप इसमें भेज सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम यानी सेंडर है, तो उनका ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से इस ब्रैकेट में लिखा है, और नाम जो है वो यहाँ लिखा है। ओके,
फिर रहेगा हमारा सीसी। सीसी जो है इसको बोला जाता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी अब क्या है, हम पहले जब ऑफिस में काम करते थे कई लोग, तो आपने देखा होगा कि एक लेटर अगर वो लिख रहे हैं तो उसके नीचे वो एक कार्बन पेपर लगाते थे ब्लू या ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से उसके नीचे वाले पेज पे भी क्या होता था, जो आप लिख रहे हो उसका इम्प्रेशन उमड़ता था। मतलब आप क्या करते थे कि सिंपली एक जो लेटर है उसकी एक कॉपी बना लेते थे, जेरोक्स कॉपी जैसे रहती है आज, वैसे हम कार्बन कॉपी बना लेते थे। ओके। तो इस कार्बन कॉपी से क्या समझ में आता था कि जो मेल या जो लेटर आपने लिखा है वो दूसरे को भी उसी तरीके से भेजा जा सकता है। ओके। सो यहाँ पर कार्बन कॉपी मतलब हम अगर चाह रहे हैं कि जो सेंडर है उसको जो ईमेल गया है, ये ईमेल किसी और को भी भेजना है जिसको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि किसी के पास में इसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, या ये मेल इस व्यक्ति को या जो सेंडर है जो रिसीवर है उनको भेज दिया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी को देना है और साथ ही साथ में क्या भेजा गया है वो भी बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कार्बन कॉपी करेंगे, सीसी करेंगे। मतलब अगर मुझे कोई आपके अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर आपने किसी एचओडी को कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है या इन्फॉर्मेशन आपने उनको भेजी है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजी है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसी चीज़ें, ऐसा मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो ये जो मेल आपने भेजा है वो सिर्फ एचओडी को भेजा है, तो आप और एचओडी में यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। सो ये कम्युनिकेशन कैसा है, सिर्फ आप दोनों के बीच में है। अब जो एचओडी है, इन एचओडी में को जब आप मेल भेजते हो तो कई बार हो सकता है कि वो एचओडी इसके ऊपर एक्शन ना ले या उसके ऊपर कुछ वर्कआउट ना हो या समय लग जाए। तो ऐसे समय जब आप उनके सुपीरियर्स को कुछ बताना चाह रहे हो या कंप्लेंट करना चाह रहे हो कि अ, बाबा ये जो मैंने मेल भेजा था तो इस पे कोई एक्शन अभी तक ली गई नहीं है, मेरा मटेरियल जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो एचओडी से सुपीरियर जो रहेंगे, जो भी रहेंगे समझ लो, तो वो आपको बोलेंगे कि आपने जो मेल भेजा था उसको, वो मेल मुझे सीसी किया था क्या, यानी उस मेल के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया था क्या। तो आप क्या बोलोगे, नहीं किया था, बराबर। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल जब आप मेल्स भेजते हो तो जो मेल आप आपके लेवल पे या आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे या आपके इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे जब भेजते हो तो उन इंफॉर्मेशंस का, उन मेल्स का किसी और रिलेटिव पर्सन को, यानी जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, इस इन व्यक्तियों को भी इसकी मालूमात होनी ज़रूरी है, ताकि वो उस हिसाब से प्लानिंग कर सके, उस हिसाब से कुछ फीडबैक ले सके, उस हिसाब से वो उन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। ठीक है। जैसे अगर आप एक आधा थैंकिंग लेटर लिखना चाह रहे हो एक ग्रुप ऑफ टीम को, एक टीम है जो 7-8 लोगों की बनी है, तो आप क्या करोगे कि जो उसके कैप्टन है उसको मेल करोगे, या जो उसका टीम का हेड है उसको मेल करोगे, और जो बचे हुए मेंबर्स है उसको सीसी करोगे। तो ये थैंकिंग लेटर क्या बोलता है कि जो कैप्टन है उसको तो थैंक किया ही जा रहा है, साथ ही साथ में मेंबर्स को भी थैंक किया जा रहा है। उसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो रिलेटेड है स्टूडेंट सेक्शन से, या समझ लो हमारे परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो परचेज को आप क्या करोगे, सीसी करोगे, स्टोर्स को सीसी करोगे। ओके। इस तरीके से अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है कार्बन कॉपी का। जो जनरली कार्बन कॉपी रहती है, ये जो सेंडर जिसको आपने भेजा है उसको ये सीसी दिखता है। सीसी दिखता है मतलब क्या, वो देख सकता है कि आपने किसको किसको सीसी किया है। ओके। सो सीसी जब आप करते हो तो सामने वाले को इन्फॉर्म होता है कि ये जो मेल है ये एचओडी को या डायरेक्टर को या वाइस चेयरमैन को क्या किया गया है, कार्बन कॉपी किया गया है। ओके। तो इसका मीनिंग है कार्बन कॉपी। अब एक दूसरा रहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है, बट जब आप किसी का मेल एड्रेस बीसीसी में डालते हो, जब आप किसी का मेल एड्रेस बीसीसी में डालते हो और से सपोज आपने बीसीसी में 2 मेल्स डाल दिए, तो इन दोनों को भी जो है इंडिविजुअल कॉपीज जाती हैं, बराबर है। तो ये बीसीसी में जो है इनको, जो सीसी में है समझ लो, या जिसको आपने टू टू में भेजा है मेल,
तो जो सेंडर है जो रिसीवर है वो, इसके अलावा जिसको आपने सीसी किया है वो, और इसके अलावा बीसीसी में अगर मल्टीपल्स होंगे तो इन सभी को बीसीसी में कौन कौन है ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब बीसीसी की जो कॉपी रहेगी वो ब्लाइंड कॉपी रहेगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो ओनली बीसीसी पर्सन, जो बीसीसी में जिसका ईमेल एड्रेस है, वही उस ईमेल को देख पाएगा, उसको सिर्फ उसका एड्रेस दिखेगा, बाकियों का किसी का नहीं दिखेगा। ठीक है। साथ ही साथ में जो टू और सीसी में है, इनको बिल्कुल भी बीसीसी में किसको भेजा गया है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, सिर्फ टू और सीसी ये दोनों ही चीज़ें हमको विजिबल है। तो अगर आप बीसीसी कर रहे हो, तो बीसीसी में कैसा है, आप उस बीसीसी को, सिर्फ बीसीसी को बताना चाह रहे हो कि ये इतना ईमेल है भाई। ठीक है। बीसीसी वाला किसको सीसी किया है वो देख सकता है, किसको टू किया है वो भी देख सकता है। मतलब टू में कौन है, मतलब किसको भेजा गया है मेल, किसको कार्बन कॉपी भेजी गई है फॉर फीडबैक, और इन दोनों को भी पता नहीं लगने देना है आपको, और किसी तीसरे व्यक्ति को इन दोनों को भेजे गए मेल की इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो आप क्या करोगे, बीसीसी करोगे। ओके, जैसे कि अगर मैं कोई लेटर भेज रहा हूँ, कुछ रिक्वेस्ट लेटर वगैरह भेज रहा हूँ मैं टू को यानी रिसीवर को, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन या कुछ इसके बारे में फीडबैक लिया जाए, तो मैं क्या करूँगा, सीसी करूँगा। अब इन दोनों को भी जो है पता लगने देना नहीं है आपको कि ये मेल भेजा गया है तीसरे व्यक्ति को, कोई उन दोनों से भी सुपीरियर। तो आप क्या करोगे, उनसे जो दोनों से भी जो सुपीरियर है या जो ऊपर की पोस्ट पे है, उसको करोगे बीसीसी, उससे नीचे वाले को करोगे सीसी, और जिसको ईमेल एड्रेस करना है आपको, यानी एग्जैक्टली ये ईमेल जिसके लिए लिखा गया है, जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया है, उसको आप रखोगे टू में। ठीक है। तो सीसी वाले को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, बीसीसी वाले को भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, बट उस ईमेल के ऊपर एक्शन किसको लेना है, जिसको आपने टू में रखा है। तो ये टू में किसको रखा है, वो एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये देखने के लिए सीसी करेंगे हम। ठीक है। सीसी में जिसको रखा है, ये इस पे प्रॉपर फीडबैक ले रहा है या एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये दिखाने के लिए हम किसको रखेंगे मेल में, बीसीसी में। ठीक है। सो ऐसा वर्क होता है हमारा सीसी, बीसीसी और टू में। फिर अटैचमेंट्स रहते हैं जो ऑप्शनल है, जिसके अंदर पिक्चर्स, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ शीट्स वगैरह आप भेज सकते हो। फिर रहता है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम आता है हमारे ईमेल के ऊपर, जब हम लिखते हैं ईमेल सेंड जब करते हैं, तो यहाँ पर वो दिख रहा नहीं है अभी, बट वहाँ पर डेट और टाइम यानी कब मेल भेजा गया है वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर अभी आजकल इसमें जो सेंड ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, सेंड ऑप्शन में भी बदलाव आ गए हैं। ओके। सेंड लेटर यानी कि अगर आप कोई ईमेल शेड्यूल सेंड करना चाहते हो, जैसे कि अ, हमको वो मेल जो है वो अभी लिख के रख देना है, आपके पास अभी समय है, आप अभी वो मेल लिख के रख दोगे, बट सामने वाले को ये जो मेल है आपको 4 बजे भेजना है। आप 1 बजे सवेरे या 10 बजे सवेरे मेल लिख दोगे, सब चीज़ें लिख दोगे, और आपको पता है कि आपके पास समय नहीं रहेगा 4 बजे, आप मे भी ट्रैवलिंग में रह सकते हो, या मे भी आपका इंटरनेट बंद रह सकता है, आप मीटिंग में रह सकते हो, इसलिए आप 4 बजे उनको मेल नहीं भेज पाओगे, बट उनको 4 बजे मेल भेजना है। इसलिए हम क्या करेंगे, शेड्यूल सेंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस शेड्यूल सेंड में हम क्या करेंगे, इस समय और डेट क्या कर देंगे वहाँ पर मेंशन करेंगे कि इस समय पर, इस डेट पर ये ईमेल क्या करना है, आपको सेंड करना है। तो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, यानी जो आपका ईमेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली ये मेल जो भी आपने लिखा है वो उस समय पर सामने वाले व्यक्ति को भेज देगी। ठीक है। बाकी ये चीज़ें सब सेम रहेगी, सिर्फ समय क्या रहेगा, आपने फिक्स किया रहेगा टाइम टेबल के हिसाब से। ये हो गए हेडर्स। फिर रहता है ईमेल का फॉर्मेट, मतलब कैसा रहता है ईमेल। कोई बिजनेस ईमेल अगर हम लिख रहे हैं, तो हम अब ये सब चीज़ें किसके लिए सीख रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए। सो इसमें बिजनेस ईमेल जब आप लिखोगे, तो इसमें सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या रहता है, जो भी आपने ईमेल लिखा है इस बॉडी का सार रहता है, यानी समरी के जैसा एक छोटा सा सब्जेक्ट रहता है, किस विषय में आप ये ईमेल लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो किसी जॉब के लिए, कोई मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए, कोई रिक्वेस्ट लिख रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, तो इस करियर अपॉर्चुनिटीज़ में एलिजिबल स्टूडेंट्स का डेटा मंगाना चाह रहे हो, या कोई ऑफ़र रहेगा, कोई स्कीम रहेगी, उसका हेडिंग रहेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा
आप कोई लिंक्स भेजना चाह रहे हो क्लास टेस्ट के वगैरह या एग्ज़ाम के, या आप कोई फॉर्मेट्स या फॉर्म्स भेजना चाह रहे हो, कुछ आप सबमिशन करना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें रहेगी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो एवरी मैसेज शुड हैव ए टाइटल, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ये सब्जेक्ट होना चाहिए शॉर्ट, क्लियर और लिमिटेड। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वर्ड्स का होना चाहिए। पूरा के पूरा सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा ये होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो एक जॉब के लिए, सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मैनेजर वगैरह वगैरह, जो भी आप जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हो उसका नाम और आपका एप्लीकेशन। ठीक है, इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड लिमिटेड। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ने वाले को उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, फिर रहेगा हमारा मैसेज, जिसके अंदर मीनिंगलेस वर्ड्स नहीं होने चाहिए। गुड न्यूज़ वगैरह जो है ये हमने अवॉइड करना है कि बहुत लेंदी मीनिंगलेस वर्ड्स नहीं आने चाहिए। जो आप बिजनेस ईमेल लिख रहे हो तो इसमें गुड न्यूज़ वगैरह जो रहते हैं ये अवॉइड करना है हमको। ओके, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट दिस 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 लाइक दिस। सो इसमें थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से आपको ये लिखना है। फिर जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस लिए आपने सब्जेक्ट लिखा है उसका स्पेसिफिक पार्ट इसके अंदर आना है, तो इसके लिए हमको स्मार्ट रूल का इस्तेमाल करना है। तो स्मार्ट रूल हमको क्या बताता है? हाउ योर मैसेज शुड बी, इट शुड बी स्पेसिफिक। ये कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक। टारगेट ए स्पेसिफिक एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको क्या ज़रूरी है, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक क्या लिखना है आपको, वो उसमें लिखना है आपको। फिर वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी क्वांटिफाई करते आना चाहिए। एट लीस्ट सजेस्ट एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। ओके, यानी कितना हमको प्रोग्रेस करना है, कितना काम करना है। मेजरेबल, सपोज आप लिख रहे हो कि मुझे कोई ऑर्डर परचेज करनी है, सो आई वांट टू परचेज एक आधा मटेरियल, स्टील का कोई मटेरियल मंगाना है। सो उसकी मेजर करो कितना क्वांटिटी में मंगाना है। सो वो मेजरेबल होना चाहिए कितने क्वांटिटी में मंगाना है। सो आई वांट टू ऑर्डर दिस मच अमाउंट ऑफ स्टील। ओके, फिर एग्रीड अपॉन यानी स्पेसिफाई हु विल डू इट। सो द स्टोर्स मैनेजर शुड परचेस इट। ओके, सो उसका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए स्टोर्स मैनेजर का। फिर ये रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबल होना चाहिए स्टोर्स मैनेजर को लाने के लिए, सब करने के लिए। ऐसा उसमें रियलिटी होनी चाहिए। और ये टाइम रिलेटेड होना चाहिए, कब तक आपको ये मटेरियल चाहिए, तो इसका स्पेसिफिक टाइम उसके अंदर मेंशन करना है। तो ये स्पेसिफिक, द थिंग्स दैट यू राइट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। ओके, ग्रीटिंग्स आप लिखिए उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट या ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह आप इसमें लिखिए। ओके, स्टार्ट विथ ए ग्रीटिंग टू क्रिएट अ फ्रेंडली बिजनेस टोन। एक फ्रेंडली बिजनेस टोन क्रिएट करने के लिए ग्रीटिंग्स लिखिए। फिर इफ़ यू हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद द रिसीवर अ नंबर ऑफ टाइम्स, यू मे यूज़ द फर्स्ट नेम, अदरवाइज स्टिक टू द सरनेम। ओके, जैसे कि ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मिस्टर खान, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मिस्टर देशमुख, या ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मिस्टर मिस्टर काले वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इफ़ रिसीवर इज़ सीनियर स्टिक टू दी सरनेम, अगर वो सीनियर है तो बिल्कुल सरनेम का इस्तेमाल कीजिए। ऐड क्लोजिंग ग्रीटिंग्स ऑल्सो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड में ऐड करना है। ये ग्रीटिंग्स इस तरीके से किए जाते हैं। फिर पर्पस आप स्टेट करो कि फर्स्ट पैराग्राफ जो रहेगा आपका ईमेल का, दिस ईमेल इज रिटन फॉर this purpose. Okay, I am sending this email for this purpose. So you should write what is the purpose of the email in the first paragraph, पहले पैराग्राफ में वो आना चाहिए। और it should have specific details, उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल्स होने चाहिए उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, सॉरी। फिर लास्ट पैराग्राफ जो रहेगा, व्हाट इज़ द एक्शन और व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस ईमेल। सो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, सो आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। ओके, फिर आपकी डिटेल्स, मेरा इतना एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। फिर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए, इसलिए मैं ईमेल लिख रहा हूँ। सो प्लीज़
इन्फॉर्म मी इफ़ आई एम शॉर्ट लिस्टेड वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप एड में क्या एक्शन है और क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वालों से, वो वहाँ पर आपको लास्ट पैराग्राफ में लिखना है। फिर एक्शन कैसी होनी चाहिए, सो इट शुड बी ऑलवेज पोलाइट फ्रेज। ओके, पोलाइट फ्रेज होनी चाहिए टू इंडिकेट एक्शन यू रिक्वायर। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप किसी को मेमो अगर लिख रहे हो ईमेल से, तभी उसमें जो है तो इंटिमिडेटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज आपने हमेशा पोलाइट वे में प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू शेयर दीज डिटेल्स, प्लीज़ सेंड मी दिस डेटा, प्लीज़ एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, या इस तरीके से आपको पोलाइट फ्रेजेस इस्तेमाल करके जो एक्शन है वो वहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। ओके, please send me the data by this date. Okay, I request you, yeah, it is to inform you that please send these things by this date and time. Okay, so action should always be polite while you are writing some business emails. While you are writing memos, it should be intimidating, यानी कि सामने वाले को वार्न अगर आप करना चाह रहे हैं, ओके, सो उसमें आपको ईमेल में इस तरीके से वो लिखना है, जैसे कि अगर आप किसी को मेमो लिख रहे हो या किसी को वार्निंग दे रहे हो कि दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी आर इन्फॉर्मिंग यू, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट डन लाइक दिस देन यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा जो भी आप लिखना चाह रहे हो, सो वो मेमो या किसी को वार्निंग देते हो करना है। फिर अटैचमेंट्स, इसमें आप मेन मैसेज में मेंशन कर दो कि मैं अटैचमेंट में सब चीज़ें भेज रहा हूँ, तो अटैचमेंट चेक कर दो। ये आप सिंपली एक सिंपल लाइन में मेंशन कर सकते हो आपके ईमेल बॉडी में, और बची हुई चीज़ें आपके अटैचमेंट में आप क्या करोगे, दिखा दोगे, सब चीज़ें बता दोगे उनको। ओके, सो अटैचमेंट हो सकती है आपका फोटोग्राफ हो, किसी का एक्सेल शीट हो, या कोई डेटा हो, कोई पावर पॉइंट हो, पीडीएफ हो, ओके, या कोई लिंक भी हो सकती है। ओके, इस तरीके से हम अटैचमेंट्स करते हैं। सो इंश्योर करो कि वो जो फाइल नेम है वो स्पेसिफिक है, जो डेटा आप डालना चाह रहे हो अटैचमेंट में वो डेटा उसमें अवेलेबल है, ठीक है, कोई इनकरेक्ट डेटा नहीं जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल किया गया है, फॉर्मेटिंग बराबर है। अदरवाइज सामने वाले को जो डेटा जाएगा वो मे बी गलत अगर चले गया, तो सामने वाला गलत एक्शन ले सकता है उस चीज़ों पे, और गलतियाँ और बढ़ सकती है, ठीक है। सो अटैचमेंट शुड बी प्रॉपर। फिर सिग्नेचर का इस्तेमाल करो, जो लिखने वाला है उसका नाम नीचे आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेरे कॉपी में दिखाया है कि जो भेजने वाला है उनका नाम, उनकी पोस्ट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब चीज़ें इसमें आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही आपके सिग्नेचर में आना चाहिए कि जो भेजने वाला है उनका नाम क्या है, कहाँ पर काम करते हैं, क्या पोस्ट है, वगैरह वगैरह। ओके, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो उसमें अवेलेबल है क्या, कोई फैंसी टैगलाइन उसमें रखना नहीं है। ओके, ये सिग्नेचर्स के बारे में है। बॉडी ऑफ मैसेज कैसा होना चाहिए, बॉडी ऑफ मैसेज तीन टाइप के बिजनेस मेल्स रहते हैं, देखो। एक रहता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन किसी को बता रहे हो कि दिस थिंग हैज़ हैपन्ड लाइक दिस, और द द प्रोसेस इज़ लाइक दिस, और द प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग लाइक दिस, वगैरह वगैरह, आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, जस्ट इन्फॉर्मिंग, यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्शन ऑन दिस, एंड यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग देम कि ऐसा ऐसा हो चुका है, या ऐसा ऐसा होगा, या ऐसा करना है, ठीक है। फिर कुछ रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कुछ आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सेंड मी द डेटा, प्लीज़ सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सेंड मी दिस फोटोग्राफ, प्लीज़ सेंड मी दिस एक्सेल शीट, वगैरह वगैरह। सो इसमें क्या है, एक्शन है, कैसी एक्शन है, सामने वाले को उसको रिप्लाई करना है, ओके, या आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे कोई एक्शन के लिए, ठीक है। सो इसमें भी एक्शन आएगी। सो इन सभी में कैसा है, रिप्लाई का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो जो आपने मेल भेजा है उसको वो सामने वाला क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, या आपको जिसने मेल भेजा है आप उसको रिप्लाई करोगे। सो दैट मीन्स यू हैव टेकन एक्शन अबाउट इट एंड यू आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द रिप्लाई। सो दैट इज़ द बॉडी ऑफ ए मैसेज। फिर सैल्यूटेशंस क्या रहते हैं, सैल्यूटेशन जो आप स्टार्टिंग में लिखते हो, डियर, सर, रिस्पेक्टेड, हेलो, हाय, ओके, प्रोफेसर, मिस्टर, ये सब स्टार्टिंग के सैल्यूटेशंस हैं। सो जनरली कोई भी मेल है, ईमेल है, तो इसमें हम डियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैडम को लिख रहे हैं तो डियर मैडम या डियर सर। बहुत ही रिस्पेक्टेड अगर है तभी रिस्पेक्टेड यूज़ करो। हाय, हेलो आप जनरल इसमें यूज़ कर सकते हो सेम लेवल के लिए, ठीक है। डियर सर जब आप बोलते हैं तो सर इटसेल्फ इज़ ए सैल्यूटेशन, तो वापस से डियर रिस्पेक्टेड सर ऐसा लिखने की ज़रूरत डबल डबल नहीं है, ओके।
फिर एट द एंड में भी लिखो बेस्ट रिगार्ड्स, ख़त्म होने पर मैसेज की बॉडी बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, जैसे हम हमारे एप्लीकेशन में लिखते हैं। लेटर जब आप देते हो, फिजिकल लेटर कोई एप्लीकेशन देते हो टीचर को, आपके दोस्तों को तो नहीं देते, टीचर्स को देते हो, सुपीरियर्स को देते हो, तब जैसा लिखते हो वैसा ही यहाँ पर भी लिखना है, सैल्यूटेशंस। एक्टिविटी आपको करना है, एक ईमेल लिखना है आपको, ठीक है। आप आपके फ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं, मुझे भी लिख सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास अवेलेबल है। सो दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू। सो लाइक दिस, एक ऐसी एक्टिविटी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाय रश्मि, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। सो दिस इज इंफॉर्मेटिव ईमेल कि ये इस वक्त मीटिंग है, यहाँ पर है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वहाँ पर उस समय पहुँच जाओ। बेस्ट विशेस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, या बेस्ट विशेस फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो इसी तरीके से आपको कोई एक सब्जेक्ट में ईमेल लिखना है मुझे या आपके फ्रेंड्स को, और ये आपको मुझे बाद में असाइनमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर ईमेल राइटिंग। So if you have any queries, you can ask me. So till then, please stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.